Welcome to Mishika classes. Today Scratch class number 5. Let's learn one new block of Scratch today. If you want to learn the blocks which we have discussed in the previous class, you can go to the description box, check it there and learn those blocks through that particular links. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. The block which we are going to discuss today is event block. First of all, we have to know that what is the meaning of event block, what is its use, what is its function and how it works. The main use of event block is to help the sprite to work on the stage. अगर हम अब इसके थ्रू हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं इसके थ्रू हम कि हम इसमें स्प्राइट से हमें कैसे काम करवाना है, क्या वो काम करेगा, किसके अकॉर्डिंगली वो काम करेगा, स्टेज के ऊपर हमारा जो स्प्राइट है वो हम इवेंट ब्लॉक के थ्रू सिलेक्ट करते हैं. These are the sum of the event blocks: when flag is clicked, when key is pressed, when the sprite is clicked, when backdrop switches to, when I receive, broadcast and many more. Let's learn one by one. When flag clicked. When flag is clicked, then block is executed. In this, the most of the time we use this particular event. What is the function of this particular event? When flag is clicked, जैसे ही हम फ्लैग को क्लिक करेंगे, द प्रोग्राम रिटर्न इन द ब्लॉक, जो भी हमारा ब्लॉक लिखा हुआ होगा दैट पर्टिकुलर परफॉर्म, उसके अकॉर्डिंगली पूरा परफॉर्म करेगा, एग्जीक्यूट करेगा. व्हेन की इज प्रेस्ड, व्हेन सिलेक्टेड की ऑप्शन इज प्रेस्ड फ्रॉम द कीबोर्ड, द ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड. इन दिस, when the keyboard, with the help of a keyboard, any key is pressed, the key which we have selected for the starting the event, that particular key is pressed, then the block is executed. इसके अंदर क्या है, अगर हमने जो भी कीबोर्ड से की को सिलेक्ट करा कि इस की से हमारा ये परफॉर्म हो, स्प्राइट ये काम करके दिखाए, जब हम वो ही की को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तभी इवेंट हैपन होगा, अदरवाइज इवेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा. मींस रॉन्ग की प्रेस करने पर इवेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा. When sprite is clicked, in this particular option, when sprite is clicked, then block is executed. जब हम sprite को क्लिक करेंगे, means the character which is performing on the stage, when we click on that particular character with the help of a mouse pointer, then block is executed. जब हम उस particular sprite पे जाकर sprite को क्लिक करेंगे माउस की हेल्प से, तब भी हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. When in this particular option the loudness is detected through the microphones, then block is executed. मीन्स इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने लाउडनेस के लेवल को सेट कर देते हैं कि जब हम माइक्रोफोन से बोल रहे हैं इतनी पर्टिकुलर लाउडनेस उसे मिलेगी तभी वो डिटेक्ट होगा, ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो डिटेक्ट नहीं करेगा साउंड को और हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा. When I receive, in this particular thing, when message is received to the block, then it is executed. इसमें हमें क्या होगा, मैसेज देना होता है, जब वो मैसेज मिलेगा उसको तब वो एग्जीक्यूट होगा. Broadcast, in this particular option what we have to do, we have to mention some blocks, some messages to in our broadcast option. Broadcast option के अंदर हमें कुछ messages देने होते हैं. When that particular broad message which we want to execute our block, that it received that particular message, then it will execute. इसके अंदर हमने कुछ messages दे दिए, जोन सा हमें मैसेज पे जोन सी कमांड देनी है, अगर हमें वो करवाना है then this will be, sprite will be performed. In this way, by selecting different options to the sprite, we will start performing. इस तरीके से हम अपना परफॉर्म अलग अलग करवा सकते हैं, थ्रू द लेवल ऑफ लाउडनेस, थ्रू माउस, थ्रू कीबोर्ड और थ्रू फायदा simply by pressing the flag. Now the next block is a control block. In this particular block, many options we have already used in our previous classes. Just we are going through the first of all we are going through that particular options. सबसे पहले हम उन particular options से हम go through होते हैं, but इसमें से maximum options को हम use कर चुके हैं. These are the some of the control options: wait, repeat, forever, if else condition, wait condition, repeat until option and many more. Let's learn one by one what is the function of these options. Wait, wait for the time and proceed to the block. In this particular option, इस वाली ऑप्शन में क्या है, जब हम वेट देंगे तो जितनी देर के लिए
हमने वेट दी है, जो इंटरवल हमने सेट किया उस पर्टिकुलर इंटरवल को कंप्लीट होने के बाद ही हमारा जो स्प्राइट है वो परफॉर्म करेगा. रिपीट द कमांड इज अंडर ब्लॉक रिपीट फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स. जो भी रिपीट कमांड के अंदर हमने नंबर ऑफ ब्लॉक्स मतलब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हमने दी होंगी वो रिपीट उतनी बार होंगी जितनी बार हमने स्पेसिफिक नंबर जो हमने नंबर दिया होगा रिपीट को कि हमारी ये कमांड अगर फॉर एग्जांपल मैंने 10 बार रिपीट करने के लिए बोला है तो 10 बार एग्जीक्यूट करेगा जो भी इसमें कमांड दी होंगी. जितने भी नंबर मैंने स्पेसिफाई कर दिया हमने जितना भी नंबर स्पेसिफाई कर देंगे उतनी बार ही स्प्राइट हमारा परफॉर्म करेगा. इन फॉर एवर द कमांड अंडर द ब्लॉक रिपीट कंटिन्यूसली. इसके अंदर जो हमारी कमांड है वो कॉन्टिन्यूसली रन होती रहेगी अनलेस एंड अनटिल वी विल प्रेस द स्टॉप बटन. जब तक हम स्टॉप बटन को प्रेस नहीं कर लेते तब तक हमारी कमांड जो है कॉन्टिन्यूसली वर्क करती रहेगी. इन रिपीट कमांड it repeats to the particular number of times that is mentioned, but in forever it will continue. If else is the condition is true. When if condition is true, then part is executed of if, otherwise it will else part will be executed. If कंडीशन के अंदर if else कंडीशन जो है एक तरह का लूप पार्ट है, इसमें हम कंडीशन देते हैं. अगर हमारी वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब तक हमारा if पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज else पार्ट. नेक्स्ट इज wait until. Wait until means when the condition is satisfied till it will be wait. अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी वो वेट करेगा, अदरवाइज वो वेट नहीं करेगा, वो हमारे प्रोग्राम को कंटिन्यू रखेगा. स्टॉप इन दिस वी विल स्टॉप ऑल द ऑपरेशंस व्हिच वी आर परफॉर्मिंग. जितनी भी हमने ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाना है अगर हम स्टॉप यूज करते हैं तो जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं सबके सब क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे. When I start as a clone. When I start as a clone, what is the meaning of clone? First of all, we have to know that. हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि clone का मतलब क्या होता है. Then we will understand what this command will be performed. तब हमें समझ में आएगा ये कमांड कैसे वर्क कर रही है. The meaning of clone is to repeat itself. Is to repeat the sprite will be repeating itself as identical. Completely identical होगी. उसमें कमांड जो इसमें हम जब क्लोन बनाएंगे तो जो भी हमारा स्प्राइट जैसा भी हमारा स्प्राइट दिखता है बिल्कुल सेम वो ही हमारा जो स्प्राइट है वो अपने आप को रिपीट करेगा, वो अपने क्लोन्स बना देगा बिल्कुल आइडेंटिकल. द कोड ब्लॉक विल एग्जीक्यूट व्हेन स्प्राइट इज क्लोन. ये तभी एग्जीक्यूट करेगा जब हमारा क्लोन बेसिकली एग्जीक्यूट में क्या करेगा एग्जीक्यूशन के अंदर ये अपने ही रेप्लिकास को अपने ही क्लोन्स को बना. लेट्स स्टार्ट डूइंग प्रोग्रामिंग. अब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं. व्हाट वी विल डू इन दिस, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम अपनी कमांड्स को आज मेनली जो हम कमांड करने वाले हैं दैट इज वी आर मेकिंग अवर क्लोन्स. हम क्लोन्स बना के देखेंगे. एंड फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कैट का क्लोन बना रहे हैं. उसके लिए मैं सबसे पहले क्या सेट करूंगी, कंट्रोल सेट करूंगी एंड द कंट्रोल इज फॉरएवर. फॉरएवर कंट्रोल मैंने सेट कर दिया. उसके बाद मोशन में दिखाएंगे अपनी कैट को फ्रॉम पोजिशन x to y. अब इसमें कैट जब मेरी मूव करती है एक्स एक्सिस के अलोंग तो मैं जो इसमें क्लोन की जो पोजीशन है जो मूव करेगा वो मेरे एक्स के लिए सिलेक्ट करूंगी. और इसमें जो ऑपरेटर मैं यूज कर रही हूँ पिक रैंडम. रैंडम एक्स की जो पोजीशन है वो क्या रैंडमली सिलेक्ट कर ले फ्रॉम माइनस 50 to plus 50. ओके नाउ वी विल स्टार्ट. अब ये रैंडमली सिलेक्ट तो कर दिया, अब इसके लुक्स को चेंज करते हैं ताकि ज्यादा थोड़ा में डिफरेंस भी क्रिएट हो जाए. वी विल चूज द नेक्स्ट कॉस्ट्यूम. उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसका क्लोन क्रिएट करेंगे. एंड फॉर दैट वी हैव टू चूज द कंट्रोल ऑफ क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ. मेरा ही क्लोन को बना दिया जाए एंड ताकि हमें डिफरेंस क्रिएट हो तो उसके लिए हम कंट्रोल किसका सेट करते हैं, टाइमर का सेट करते हैं. एंड दैट इज फॉर 1 सेकेंड. नाउ आई एम स्टार्टिंग माई इवेंट. अब मैं इवेंट को स्टार्ट करती हूँ अपने. यस इवेंट इज स्टार्टेड. सी द नंबर ऑफ कैट्स इज विजिबल ऑन अवर स्टेज. स्टेज के ऊपर हमारी नंबर ऑफ कैट्स विजिबल हो रही हैं. बहुत सारी कैट्स बन के क्लोनिंग हो रही है उसकी बिल्कुल सेम आइडेंटिकल वो क्लोन्स दिख रहे हैं. जैसे जैसे वो मूव कर रही है उसके जो लेग्स हैं वो भी चेंज हो रही हैं, लेग्स की पोजीशन चेंज हो रही है. इट मींस वो अपने कॉस्ट्यूम्स को भी चेंज करती जा रही है साइड बाय साइड. लेट्स आई एम स्टॉपिंग वंस अगेन and starting my event once again so that
You can better see that how it works, कैसे दिख रहा है. See, in this way the clone is generated on the screen. इस तरीके से हम क्लोन को जनरेट करवा सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर. Let's learn one how it will works and where it will use. अब हम ये देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज होती है और इस तरह की कमांड्स को मैं कहाँ यूज कर सकते हैं. फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग अ बॉल. मैं एक बॉल ले रही हूँ एंड इरेज ऑल. फाइल में न्यू रिप्लेस कर दिया. चेंजिंग द स्प्राइट ऑफ अ बॉल. पहले वाले स्प्राइट को मैं डिलीट कर देती हूँ. नाउ बॉल. अब हम क्या करेंगे, इसके लिए बनाएंगे. तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसकी पोजीशन को सेट करें और पोजीशन को सेट करने के लिए अब इसको मूव करवाएंगे फ्रॉम गो टू 0 टू y 0. बाय डिफॉल्ट जो इसकी पोजीशन थी. नेक्स्ट इज सेट द कंट्रोल सेट करेंगे एंड कंट्रोल इज फॉर एवर पोजीशन. फॉर एवर के लिए ले रही. और फॉर एवर में जो है मुझे इससे क्या बनाऊंगी, मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगी. तो आई एम मूविंग टर्निंग कमांड यूजिंग. उसके बाद इसके स्टेप्स मूव करवाएंगे. नाउ क्रिएट अ क्लोन. अब हम क्लोन क्रिएट करेंगे. क्लोन भी क्रिएट कर दिया. नाउ आई एम सेटिंग द कंट्रोल फॉर 1 सेकेंड. 1 सेकेंड के लिए कंट्रोल सेट कर दिया. स्टार्टिंग द इवेंट. अब हम इवेंट को स्टार्ट करते हैं. नाउ सी, जैसे ही मैंने स्टार्ट किया देखो मल्टीपल बॉल्स बनती जा रही है. वो क्लोन बनाता जा रहा है अपना. पीछे पीछे बॉल विजिबल हो रही है. ये मैंने वेट 1 सेकेंड का दिया है तभी वो धीरे धीरे में विजिबल हो रहा है कि वो धीरे धीरे टर्न करता जा रहा है और एक सर्कल को ड्रॉ कर देगा. इस तरीके से हम चाहे जिस तरह मर्जी डायरेक्शन में हम टर्न इसको करवा सकते हैं, अपनी क्लोनिंग को मूव करवा सकते हैं. इफ यू वांट टू इंक्रीज द स्पीड, अगर हमें स्पीड इसकी इंक्रीज करनी है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेंज द इंटरवल ऑफ द टाइम. हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरवल को चेंज करना पड़ेगा. अब मैंने इंटरवल थोड़ा फास्ट कर दिया. लेट्स स्टार्ट. जैसे मैंने इंटरवल को 0.1 सेकेंड किया, मतलब मैंने इंटरवल को कम कर दिया, तो मेरी जो बॉल है वो थोड़ी और स्पीडली मूव करना स्टार्ट कर. इन दिस वे वी कैन परफॉर्म हाउ आवर स्प्राइट विल वर्क एंड मेक अ शेप्स. अब इस तरीके से भी हम शेप्स को बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है. नाउ लेट्स लर्न वन मोर थिंग. अब हम पेन कमांड को इंसर्ट करते हुए, एक्सटेंशन को ऐड करते हुए अपनी, फिर हम कमांड्स को देते हैं. And for that, first of all, we will adding the extension. We have the added. Now erase all options first of all, then pen up, pen down. We will use pen down option ताकि अब हमें ये पता चल जाए कि हमारा जो जहां पर भी कर्सर जाएगा वो पीछे क्या बनाता चला जाएगा, वो पीछे बनाता चला जाएगा, लाइंस ड्रॉ करता हुआ चला जाएगा ताकि हमें प्रॉपरली विजिबल हो जाए. नाउ कंट्रोल दिया फॉर एवर, क्योंकि फॉर एवर क्यों दे रहे हैं, ताकि वो बार बार मूव करते रहे. अभी तक हम पोजीशंस को सेट कर रहे थे. मींस पहली वाली में हमने क्या करा, पोजीशन दे दी कि एक्स को अलोंग मूव करना है. सेकंड बारी में हमने कंडीशन क्या दे दी कि हमारा वो जो क्लोन बन रहा है वो एक पर्टिकुलर क्या हो, डायरेक्शन मूव करे. मैंने उसके लिए क्या यूज करी, टर्न कमांड यूज करी. एंड दिस टाइम, और इस टाइम जो मैं कमांड बनाने वाली हूँ कंट्रोल इसके लिए, क्लोन के लिए, दैट इज अ रैंडम पोजीशन. मींस वो रैंडमली कहीं पर भी क्लोन को बना सकता है, कहीं पर भी रैंडमली वो मूव कर सकता है. फॉर दैट नाउ पॉइंट इन डायरेक्शन. अब पॉइंट इन डायरेक्शन वो रैंडमली कहाँ कहाँ पिक करे, उसके लिए मैंने रैंडम वेरिएबल देती हूँ कहाँ से कहाँ तक वो मूव कर सकता है. पिकिंग दैट वैल्यूज 1 to 10 दे दिया मैंने, पिक रैंडम 1 to 10 वो मूव करे. ओके, बाय डिफॉल्ट यही था, मैंने बाय डिफॉल्ट ही चूज किया है. नाउ आई एम क्रिएटिंग द क्लोन. अब मैं क्या क्रिएट करने वाली हूँ, उसका क्लोन क्रिएट करने वाली हूँ. क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ. नाउ आई एम चेंजिंग माई पेन कलर. पेन कलर को चेंज कर देती हूँ मैं, सो दैट जो लाइंस बने वो मेरी डिफरेंट डिफरेंट कलर की बन जाए इससे. नाउ आई एम स्टार्टिंग माई इवेंट. सी,
आपको पीछे लाइंस ड्रॉ होती हुई विजिबल हो रही है और अलग अलग बॉल्स आपको विजिबल हो रही हैं स्क्रीन पे। सी नाउ जैसे मैंने उसको क्लियर किया, सिर्फ जो लाइंस थी वो मुझे ड्रॉ सीन रह गई, क्योंकि बाकी सब तो क्लोन थे, वो क्लोन तो मेरे रिमूव हो गए, मुझे सिर्फ लाइंस विजिबल होगी। लाइंस इसलिए विजिबल हो रही है इस तरीके से यूजर की, जो मेरा जो क्लोन बन रहा था वो किस डायरेक्शन में कैसे कैसे मूव करता हुआ बन रहा था। वंस अगेन आई एम शोइंग यू अगेन, मैंने इवेंट बनाया, पीछे लाइंस ड्रॉ हो रही हैं। सी वंस मोर, लाइंस ड्रॉ होती हैं पहले और फिर मेरा क्लोन बनता है, ब्रांड लाइंस ड्रॉ हो रही है, मेरा क्लोन बनता जा रहा है। इन दिस वे वी कैन यूज। अब मुझे इसमें बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है, तो मैं वेट कमांड देती ताकि मुझे क्लियरली विजिबल हो कि कैसे कैसे वो मेरे क्लोन्स को बना रहा है। एंड फॉर दैट आई एम चूजिंग वेट ऑप्शन। सी अब वो धीरे धीरे बना रहा है, तो हमें प्रॉपरली विजिबल हो रहा है कि कैसे बना रहा है वो क्लोन। वेट इंटरवल जैसे ही मैंने इसमें इंसर्ट किया, उसने अब जो क्लोन बनाया अब पता चला कि यहाँ से यहाँ जा रहा है। पेन पेन अप पेन डाउन कमांड का हमें एडवांटेज क्या हुआ, हमें ये पता चल रहा है कि हमारा कौन सी बॉल कैसे ड्रॉ हो रही है और कैसे वो पोजीशन को वो चेंज कर रहा है। आई होप you get the point what I want to explain you. You like the programming that I teach you today. Keep doing practicing, keep doing programming. I hope you like the video. If so, please like it, share it and subscribe my channel. Thank you.